Yes, Sumit sir, you can start. Okay, thank you so much for your words. So, a very good afternoon, everyone. And I'm Sumit. I take care for this NPS thing for ICC Prudential in eastern part of the country as well as in the northern part. So today we'll just try to understand in brief what is NPS and how this NPS is beneficial in terms of tax saving and corpus generating for their retirement. So the agenda of the presentation would be as follows. Next slide, please, Sandeep. So the agenda would be like what is pension and how it is being importance of having pension. The very second part would be what is NPS, like the National Pension System, about which we are going to talk about, the features and benefits. Third one would be the corporate NPS, like how NPS as a tool can be used in terms of retail as well as in the corporate terms, and what are the different tax benefit that NPS offers. We'll also try to explain what are the options and or choices that we are having in NPS. And in the end, I just try to brief about the company, ICC Prudential Pension Funds Management Company. So the very first one, what is pension and the importance of pension planning in the current scenario. So in the current world, we divide our life into two different phases. The first one is the accumulation phase where while we working, we just try to save some portion of our earning for our futures. So the first phase is the accumulation phase, and then comes the retirement phase when after a certain age or after a certain point of time, we decide not to work any further and we just need to have some consistent source of income so that we can continue our lifestyles and have the basic amenities of the life. So it's always better to start saving earlier. So because as early we start, we'll be having a better corpus at the time of retirement. Going ahead, if we talk about the importance of pension planning, so the very first one is the physical independence that we'll be having at a later point of time. Like if we have certain corpus in our hand and if you are having a regular source of income, so obviously we won't be dependent on somebody else for fulfilling our basic amenities. The life standard or the living that we are having as of date could be maintained at a later point of time also if you are having a regular income in our hand. And also, if you are saving certain taxes today, so that will be helping in generating more corpuses. तो अपने बोल सकते हैं कि पेंशन प्लानिंग में ये सारी चीजें रहती हैं. अब बात आती है इन सारी पेंशन प्लानिंग की जो भी बात हम लोग कर रहे हैं ये हाउ वी कैन अचीव दिस थिंग. So the answer to all these queries could be NPS. Going forward, if we see the NPS or National Pension System, so it is a retirement solution which was launched by Government of India way back in 2004. Firstly, it was launched only for the state government and central government employees because prior to 2004, the pension scheme in India was defined benefit scheme, where if a person who is working in central or state government, they were liable to get pension after the attainment of age of 60 years. But in 2004, government made a change and they decided to change the definition of pension from defined benefit to defined contribution, where they asked the employees to contribute a certain portion of money from their income towards NPS. So it is like 10% from the pocket of employees and 14% from the government end. In total, 24% of basic plus DA is being redirected towards NPS so that at a later point of time, they could have a better kitty for the purpose of retirement time. But in the year 2009, it was launched for all India citizens, like any Indian individual aged between 18 to 70 can open their NPS account. They can contribute till the age of 75 and like they are being free. They are giving an option like post age of 60 years, they can just close down their NPS account. They can withdraw a certain portion of money from that, which will be always tax free. And with the remaining portion, they need to buy annuity or the pension. So if we say like what are the types of NPS as of now, so we term them as retail and corporate.
and I'll try to explain all these retail and corporate in a later slides. So if we talk about the features and benefits that NPS is offering, so very first one is the portability in nature. Like अगर आप आज एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, कल आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर या दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, तो यू कैन कैरी द सेम एनपीएस अकाउंट. You need not to open a fresh NPS account whenever you switch a location or your employer. Like it's a universal number, just like your PAN number or UAN number for PF account. You carry the same NPS account across location, across employers. Simple in terms of nature, just because it is being regulated by PFRD, which is a government appointed body, which takes care of all NPS activities. Flexible is in nature just because it is given an option, like the option is given to the subscriber. They can choose fund houses, they can choose the POP, they can choose the annuity service provider. So all these things can be done by subscriber himself. Economical in nature, just because if you talk about fund management charges that is being levied on NPS accounts, that varies between 0.03 to 0.09. But if you talk about the fund management charges that is being levied on mutual fund accounts or some other instruments, that varies between 1.5% to 2.5% of AUM basis different plans. So we can just compare in terms of economical how best tool NPS could be when we talk about fund management charges. Unique tax benefit, NPS offers various tax benefit under different sections, namely ATC, where it can be clubbed with 1.5 another saving instrument, ATCCD 1B, which gives NPS exclusive 50,000 tax benefit, and also ATCCD 2, where when a person is working under a certain corporate who have already launched NPS for their employees, so they can enroll themselves under this corporate NPS model and can save taxes up to 10% of their basic plus DA. So ये थोड़ा एनपीएस का फीचर्स और बेनिफिट्स रह जाता है. अगर आगे हम लोग बात करें तो जो की टच पॉइंट रह जाते हैं एनपीएस में, बेसिकली 6-7 बॉडीज बनती हैं, बट जो हमारे काम की मेन आती हैं वो आ जाती हैं पीओपी या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जिसको हम लोग कहते हैं. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वो बॉडीज हो जाती हैं जो आपके एनपीएस अकाउंट को ओपन करने में हेल्प करती है. बाद में आपके एनपीएस अकाउंट की रिलेटेड जो भी सर्विसिंग की पार्ट आती है वो सारा कुछ एक पीओपी देखता है. आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 90+ पीओपीज वर्किंग हैं जो आपके एनपीएस अकाउंट को खोल सकती है. दूसरी बॉडी है सीआरए, जो आपका रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती है. जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करते हैं वाइल अकाउंट ओपनिंग या जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह जो रहते हैं हमारे, वो सारे सीआरए के साथ सेफ रहते हैं. आज के टाइम पे 3 सीआरए इंडिया में वर्किंग है, एनएसडीएल या प्रोटीन जो कहलाते हैं, सेकंड के फिनटेक, और थर्ड वन जो नया आया है कैंप्स. तो 3 सीआरए आज इंडिया में काम कर रहे हैं. फिर आते हैं फंड हाउसेस, जिनको हम लोग पेंशन फंड मैनेजर्स भी कहते हैं. आज के टाइम पे इंडिया में 10 फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें 7 पुराने और 3 नए फंड हाउसेस हैं जो पिछले साल उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कराया है. फंड हाउसेस का मेन काम है कि जो भी आप पैसे एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारे पैसे ये फंड हाउसेस के पास बेसिस डायरेक्शन या मिलता है, और उस हिसाब से ये कंट्री ये इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग फंड्स में. तो ये 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज हो जाती हैं. चौथी बॉडी हो जाती है आपकी एएसपी, जिसको एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है. इनका मेन वर्किंग स्टार्ट होता है जब आपकी एज 60 ईयर्स क्रॉस कर जाती है, जब आपको पेंशन लेना होता है, तब ये एएसपी वर्किंग में आती हैं. आज के टाइम पे इंडिया में 13 एएसपीज हैं जो आपको अलग अलग तरीके की पेंशन दे सकती हैं. बेसिकली जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एएसपीज ही होती हैं. अगर हम लोग आगे चलें तो अगर मैं बताऊं आपको कि एनपीएस का जो बात हो रही है कि कॉर्पोरेट एनपीएस और रिटेल एनपीएस क्या होता है, तो बेसिकली आपके पास एक एनपीएस का अकाउंट है. अगर आप इंडियन सिटीजन हैं जो किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट को हम लोग रिटेल अकाउंट कहते हैं. अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जहाँ पे
कंपनी ने ये बोल रखा है कि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाहता हूँ एनपीएस का, और वो चाहे तो अपनी सैलरी में बेसिक प्लस डीए का अप टू 10% वो एनपीएस में रूट करवा सकते हैं। तो सेम रिटेल अकाउंट आपका कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट कहलाना लगता है, जहां पर कंपनी भी कंट्रीब्यूशन करती है और आप अपनी पॉकेट से भी 50,000 का एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी एक ही एनपीएस अकाउंट में आप रिटेल मॉडल पे 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं और कॉर्पोरेट रूट में 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये मल्टीपल टैक्स बेनिफिट है जो समझाया जा रहा है। पहला है जो एटीसी है हमारा, एटीसीसी, जिसमें आप 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके पास आपका पीएफ, आपका पीपीएफ, आपके ईएलएसएस या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये सारे होते हैं। इसमें एनपीएस का भी रोल रहता है। अगर आप चाहें तो एनपीएस में भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको आप शो कर सकते हैं कि आपने उस एनपीएस में इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख, जो आप सेक्शन एटीसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। द सेकेंड वन इज एटीसीसीडी 1B, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव 50,000 का टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम 1.5 लाख ऑफ एटीसी। तो टोटल क्लब करके देखेंगे तो 2 लाख रुपए तक का आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। जो थर्ड वन जो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 80CCD 2 का, जहां पर अगर आप कॉर्पोरेट इम्प्लाइज हैं और आपकी कंपनी एनपीएस का बेनिफिट रोल आउट कर रखी है, तो आप 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का एनपीएस में रूट करवा सकते हैं, और जो भी आपका 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम से हट जाता है। एक इलस्ट्रेशन के बेसिस पे अगर मैं बताऊं आपको ये कैसे काम करता है, तो ये मान लेते कोई इंडिविजुअल है जिनकी जो एनुअल सैलरी है वो 15,49,996 रुपीज है, जिसमें उनका बेसिक पार्ट 4,65,000 है। एचआरए उनको 2,32,500 दिया जा रहा है और स्पेशल अलाउंसेस 7,56,696 रुपीज है। अब इनका लिव इन कैशमेंट 40,000 का है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन 55,800 का है। जो आपको बीच का कॉलम जो टेबल दिख रही है उसमें हमने देखा कि उसके पास एनपीएस, कॉर्पोरेट एनपीएस का बेनिफिट नहीं है। अब मान लेता हूं कि वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पे कॉर्पोरेट एनपीएस का बेनिफिट किया गया है, तो उनकी सिटी एज इट इज 15,49,000 ही रीड करेगी। बट क्या है कि उनकी बेसिक सैलरी का 10% यानी कि 46,500 वो उनकी टैक्सेबल इनकम से हट जाएगी। बट ये जो अमाउंट है उनकी बेसिक सैलरी की जगह उनके स्पेशल अलाउंसेस से मैनेज किया जाता है, रही है, बट वो रीएडजस्ट हो रखी है। तो जो टैक्सेबल इनकम फर्स्ट स्लैब में 14,94,000 था, वो सेकेंड सिनेरियो व्हेन सब्सक्राइबर हैज ऑप्टेड फॉर कॉर्पोरेट एनपीएस, वो 14,47,696 रुपीज शो होगा। अगर मैं ये देखूं कि अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने पे कितना टैक्स सेव हो रहा है आपका, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। अगर इनकम रेट्स अलग अलग दी गई हैं, पहली स्लाइड पहला टेबल आपको बता रहा है विदाउट एनपीएस और सेकंड टेबल बता रहा है विद एनपीएस। तो मैंने ये देखा कि पीएफ में उन्होंने 55,800 का इन्वेस्टमेंट किया है और पीपीएफ में 84,200 का। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए किया है कि उनका जो 1.5 लाख की सीलिंग है एटीसी की, वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है। तो हमारे पास अभी भी 10,000 का एक बफर है जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको एटीसी की बेनिफिट लेने के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एनपीएस दैट इज एटीसीसीडी 1B, जिसमें उन्होंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, प्लस कॉर्पोरेट एनपीएस में जो उन्होंने 10% ऑफ बेसिक सैलरी डाली थी, वो 46,500 का वो भी टैक्स सेविंग में आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें कितनी टैक्सेस सेव हो रही हैं विद एनपीएस एंड विदाउट एनपीएस, तो आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट 1,06,000 का डिफरेंस आ रहा है जब वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। तो ये एक चार्ट था, एक इलस्ट्रेशन था जो टैक्स सेविंग के पर्पस को सर्व कर रहा था कि एनपीएस अगर है तो किस हिसाब से आप टैक्स सेव कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा एनपीएस के फीचर्स के बारे में बताएं। ये एक टैक्स बेनिफिट एक एस्टिमेशन है कि लोग पूछते हैं कितनी जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपका कॉर्पस बेटर हो। तो हमेशा ही आंसर रहता है आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर ऑप्शन या बेटर रिटर्न मिलेगा, जस्ट बिकॉज ये भी एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। मार्केट में आपके
पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। 3 अलग अलग फंड्स हैं जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आता है, इक्विटी फंड्स, और 2 डेट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जितनी जल्दी आप इस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उतना अच्छा बेटर रिटर्न्स आपको मिलेगा। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और स्टार्टिंग अर्ली बताई गई थी कि अगर आप कोई एज 25 का है, 10,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या उसका कॉर्पस वैल्यू बनेगा, और वही अगर उसने 2 साल से डिले किया तब क्या वैल्यू बनेगी। जिसमें ये एजम्पशन माना गया कि रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारी 15% के आसपास रही है, और एनुअल बेसिस पे वो 10% का टॉपअप कर रहा है अपने कंट्रीब्यूशन में। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं, तो ये टैक्स बेनिफिट का बताया गया है कि एज 30 पे अगर सैलरी ये रहती है 3 लाख रुपीज की, जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है क्या ग्रो हो रहा है, तो एक इलस्ट्रेशन आपको दिया गया है, और साथ में एजम्पशंस भी नीचे लिखे गए हैं। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, क्या चॉइसेस मिलती हैं मुझे एनपीएस में, तो एनपीएस अकाउंट जब भी आप ओपन करते हो, तो बेसिकली आप अपना टीयर 1 अकाउंट ओपन करते हो। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, टीयर 1 अकाउंट्स एंड टीयर 2 अकाउंट्स। जब आपने कहा कि आपने अपना एनपीएस अकाउंट खोला है, तो बेसिकली आपने अपना टीयर 1 अकाउंट खोला है। तो इसकी वजह से नेचर जो है वो मैंडेटरी होती है फॉर टीयर 1। टीयर 2 आपका एक वॉलंटरी अकाउंट है। जब आपका टीयर 1 अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, तब अगर आप चाहें तो टीयर 2 अकाउंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जो विड्रॉल्स की बात की जा रही है, अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो टीयर 1 अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स रहती हैं, जबकि टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर विड्रॉल्स। आपकी जब मर्जी हो आप पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी जब मर्जी हो आप पैसे एनपीएस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात है, भी बेनिफिट्स हैं वो टीयर 1 अकाउंट में दिए जा रहे हैं, जबकि टीयर 2 अकाउंट में से कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं होते हैं। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे टीयर 1 अकाउंट मिनिमम 500 रुपीज से अकाउंट ओपन हो सकता है, और टीयर 2 अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो मिनिमम 1000 रुपीज से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ईएलटी कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो अगर आप अपना एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जब टीयर 2 की बात होती है तो ऐसा कोई भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता टीयर 2 में। अगर मान लीजिए आज आपने 5,000 के साथ टीयर 2 अकाउंट अकाउंट ओपन किया, 1 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने पूरे पैसे 5,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको सर्टेन फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ कंपलसरी है कि आपको पैसे रखने हैं। आप चाहें तो जीरो बैलेंस पे भी टीयर 2 अकाउंट रख सकते हैं। टिल द टाइम योर टीयर 1 अकाउंट इज एक्टिव, दैट सिंपली implies योर टीयर 2 इज ऑल्सो एक्टिव। गोइंग फर्दर, अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हमें मिलते हैं एनपीएस में, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो उसमें 2 डेट के इंस्ट्रूमेंट और 2 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। पहला है आपका इक्विटी फंड्स, जहां पर गवर्नमेंट ने कैपिंग बना रखी है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप अपने एनपीएस अकाउंट में करते हैं, उसमें मैक्सिमम 75% तक ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो फंड है इक्विटी का, वो है अल्टरनेट फंड्स, जहां पे गवर्नमेंट ने 5% की कैपिंग रखी है। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फंड्स में आप 80% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, ये दो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट आ गए। इन दोनों में आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप चाहें तो 100% तक अपने सारे पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट पे पार्क कर सकते हैं, बट इसमें ये नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, जैसा रिस्क है वैसा आपका रिटर्न है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटर्न हमारे कंपेरेटिवली कम रहते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अच्छी रिटर्न दे जाते हैं, फिर आपके इक्विटी फंड्स रहते हैं, बाद में आपके अल्टरनेट फंड्स रहते हैं। अल्टरनेट फंड्स रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है, 2 साल पहले लॉन्च हुए थे, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और रियल एस्टेट बॉन्ड्स हैं। तो इनकी वोटेलिटी कुछ ज्यादा है, तो इन पे जो कैपिंग है वो भी सबसे ज्यादा रखी गई कि 5% तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की बात करूँ एनपीएस में जो अवेलेबल हैं, तो 2 तरीके के आपके चॉइसेस बन सकते हैं। या तो आप एक्टिवली अपने अकाउंट्स में डिसाइड करें कि आप कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन कहाँ रहना है, या फिर बेसिस योर एज एक आपको ऑटो चॉइस मिलती है, जहां से आप चाहें तो आप कंट्रीब्यूशन डिसाइड करवा सकते हैं। तो जो फंड एलोकेशन रहता है एक्टिव चॉइस में, उसमें सब्सक्राइबर खुद ही डिसाइड करता है, और जो मैंने आपको बता दिया कि 70
5% आप देखते हैं, 5% तक अल्टरनेट फंड्स पे। अगर मैं एज वाइज बताऊं कि कैसा इन्वेस्टमेंट रहता है एक्टिव चॉइस में, तो आपको पता चलेगा कि टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर आप चाहें तो 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर चार्ट है इसकी जो आपको दिखाया जा रही है अभी, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर आप चाहें तो इक्विटी में 75% तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% तक आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, और अल्टरनेट फंड्स में 5% का आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट जैसे ही आपकी एज 50 क्रॉस होती है, आपकी इक्विटी की कैपिंग कम होती जाती है। आप एट द एज ऑफ 55 ईयर्स अगर आप चाहें कि मैं 70% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ट ही आपको सीधा बता रहा है कि एट द एज ऑफ 55 ईयर्स जो मैक्सिमम एक्सपोजर आप इक्विटी फंड्स पे रख सकते हैं वो 62% ही आप रख सकते हैं, नॉट इवन 62.6। और ये जो भी आपके रिमेनिंग परसेंटेज रहते हैं आप वो डेट इंस्ट्रूमेंट या अल्टरनेट फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली जो एक्टिव के अलावा जो दूसरा ऑप्शन आपके पास था ऑटो चॉइस, उसमें क्या है कि आपकी एज की बेसिस पे गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग तरीके के फंड्स बना रखे हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। ये आपकी एज पे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए 35 की एज के पहले तक का कोई भी बंदा है, अगर उसने एग्रेसिव फंड लिया है जिसको हम लोग लाइफ साइकिल 75 भी कहते हैं, अगर उसने ये सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें उसका इक्विटी का एक्सपोजर 75, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक्सपोजर 10% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर 15% रहेगा। और जैसे ही उसकी बर्थ एनिवर्सरी आती आती है, ये एलोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। सिमिलर फैशन पे अगर सेम बंदा जिसकी एज 35 ईयर्स है, उसने एग्रेसिव की जगह अगर कंजर्व कर लिया होता तो इक्विटी का एक्सपोजर उसका 25% होता, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 45% का इन्वेस्टमेंट हो रहा होता, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30% का। तो अगर आप इस चार्ट को ये देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनका जो एक्सपोजर है वो इक्विटी से हटके डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ता जाता है। और एट द एज ऑफ 55 एंड एबव ये फाइनल चार्ट बन जाती है। अब उसके बाद उनका अगर उनको और ज्यादा एक्सपोजर चाहिए इक्विटी में, तो वो ऑटो एलोकेशन कराकर अपना एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 4 बार ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपने ये एसेट के जो एलोकेशन है वो चेंज कर सकें। या तो आप एक्टिव से ऑटो, ऑटो से एक्टिव जो करना हो, या लाइफ साइकिल को चेंज करना हो, ये आप एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार कर सकते हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की बात आ गई। अगर मैं बात करूं एग्जिट की, अगर आपके एनपीएस अकाउंट से आप एग्जिट कैसे करते हैं, तो इसमें आपके पास दिखता है 3 केसेस में आप एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ रिटायरमेंट। अगर आपका रिटायरमेंट हो गया तब आप एग्जिट कर सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब अगर आपकी ये 60 ईयर्स हो गई। कोई भी इंडियन सिटीजन एज्ड बिटवीन 18 to 70 ईयर्स अकाउंट ओपन कर सकता है। मैंने ये केस माना है कि किसी ने 60 के पहले अकाउंट ओपन किया था, और 60 पे जाने के बाद उनके अकाउंट में लॉकिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है। तो 60 की एज क्रॉस कर गई, जो भी कॉर्पस उन्होंने बना रखा है उसका 60% वो विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री, और रिमेनिंग 40% से वो पेंशन ले सकते हैं। सब क्लॉज ये कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ क्लोजर योर अकाउंट पोस्ट अटेंडेंट एज ऑफ 60 ईयर्स, अगर आपका कॉर्पस वैल्यू 5 लाख या 5 लाख से कम होता है तो आप पूरे के पूरे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्री मैच्योर एग्जिट, जिसमें अगर आप एनपीएस इकोसिस्टम में फॉर 5 फाइनेंशियल ईयर्स अगर आप इन्वेस्टेड एनपीएस अकाउंट को क्लोज डाउन कर सकते हैं। उस सिनेरियो में जो भी कॉर्पस वैल्यू आपकी बनी हुई है उससे आप 20% टैक्स फ्री अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं, और रिमेनिंग 80% से आपको पेंशन परचेज करनी होती है। सब क्लॉज ये भी कहता है कि एट द टाइम ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट अगर कॉर्पस वैल्यू 2.5 लाख से कम होती है तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं। द थर्ड केस कुड बी अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। उस केस में जो भी उनके नॉमिनी या लीगल हायर होते हैं उनको हम लोग पूरा कॉर्पस वैल्यू वापस कर देते हैं। ये हो गया आपकी एग्जिट। इसमें एक आता है पार्शियल विड्रॉल, कि अगर आपने एनपीएस अकाउंट ओपन कर रखा है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से। एनपीएस अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तब बनती है जब आप एनपीएस इकोसिस्टम में 3 फाइनेंशियल ईयर तक इन्वेस्टेड रह चुके हैं।
अगर आप 3 फाइनेंशियल ईयर तक इन्वेस्टेड हैं और अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन आप विड्रॉ कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, 25% of your own contribution. This will exclude any contributions made by the corporate or interest earned. एग्जाम्पल पे अगर मैं बताऊं, मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने अपना एनपीएस अकाउंट खोल रखा है। अब पर ईयर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे कॉर्पोरेट एनपीएस का बेनिफिट रोल आउट है। आपने 10% का बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन करवा रखा है। वहां से आपके 4 सालों में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन हो गया, तो टोटल 4 लाख रुपए हो गए, प्लस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट अर्न हो गए। तो टोटल कॉर्पस वैल्यू एट द टाइम ऑफ पार्शियल विड्रॉल अगर 5 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि आप 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन जो आपने 50,000 करके 4 सालों में जमा किया था, 2 लाख रुपए, आप उसका 25% विड्रॉ कर सकते हैं। आपने जैसा ही पहला विड्रॉल किया, ये काउंटर रिसेट हो जाता है। पहले पार्शियल विड्रॉल से दूसरे पार्शियल विड्रॉल के बीच में जो भी आप इन्वेस्टमेंट फिर से करेंगे, उसका 25% फिर आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस फैशन में आप 3 बार पार्शियल विड्रॉल पूरे लाइफ टाइम में कर सकते हैं फ्रॉम योर एनपीएस अकाउंट। जो भी आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, उसमें आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आपको एक कंफर्मेशन देना होता है कि आपको पार्शियल विड्रॉल चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंशन रीजन: education of self or children, marriage of children due to some critical illness of self, spouse or children, construction or purchase of residential property, or for starting a new business. ये कंडीशंस अगर आप आपकी है, तो आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म पे कंसेंट देना है। तो ये एक फीचर्स थी, जो बेनिफिट जो भी एनपीएस की, तो मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको ये बताऊं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी के हम लोग एम्प्लॉइज जो आपको हम लोग बता रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो ऑपरेशन है वो 2009 से चल रहा है। जिस दिन आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को ऑल इंडिया सिटीजन मॉडल के लिए ओपन किया था। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएफएम इन द एनपीएस इकोसिस्टम। वी आर आल्सो पीओपी एंड आवर पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इज द एएसपी। तो आपको सिंगल ब्रांड के अंदर पीओपी प्लस पीएफएम प्लस एएसपी तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। टिल द टाइम वी आर स्पीकिंग अबाउट, जो एयूएम हम लोग मैनेज कर रहे हैं, दैट स्टैंड्स अराउंड 19,300 सीआर एयूएम हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं फंड परफॉर्मेंस की बात करूं, तो आई एम प्राउड से दैट एज ऑफ नाउ वी आर द बेस्ट रिटर्न गिवर्स इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। आपको प्रॉपर एक चार्ट मैं अभी शो कर रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। ये हमारे रिटर्न है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएफएम का। अगर स्कीम ई की बात करूं, तो 1 ईयर का रिटर्न जो हमारा रह रहा है आज के टाइम पे, जो मार्केट में द बेस्ट है, वो 25.7% का है। 3 ईयर रिटर्न में भी हम लोग मार्केट में द बेस्ट है, 25.23 पे हमारा रिटर्न रह रहा है। और अगर हम लोग 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का टाइमलाइन देखें, तो ये रिटर्न 13.25% से ज्यादा ही रह रही। अबाउट द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो आपको भी यहाँ देखना है कि वो मिलेगा कि जो भी आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा जो टैक्स सेविंग के लिए या फिर फॉर सेविंग लोग यूज करते हैं पीपीएफ, वो 7.1% का रिटर्न दे रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन 10 ईयर्स टाइमलाइन, तो ये ऑलमोस्ट 8%, 8.5% के आसपास रह रहा है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोर देन 8%। तो किसी भी सिनेरियो में जो मार्केट में अवेलेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, उससे बेटर हमारा रिटर्न रह रहा है। और इक्विटीज में तो अभी हम लोग टॉप पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीएस इक्विटी स्पेस। तो ये एक ब्रीफ था हमारे एनपीएस के बारे में। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएफएम एज अ कंपनी ने अर्न कर रखा है पिछले कुछ सालों में। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीओपी इन एनपीएस इक्विटी स्पेस। So this will be a crisp idea about NPS, its benefits, and the company from which we are.
So all the participants to just if they are having any sort of queries, they can just ask us right away. Or at a later point of time also, Anshu would be there who will be solving all your queries. So yes sir, uh, thank you sir. The floor is open. अगर किन्हीं को भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं सर अभी. First of all, thank you, Sumit ji, for such a wonderful presentation. And we are open for questions. Any participant want to ask any question? We are open for, the floor is open for you. So I have a question, Sumit ji. जी. Can you throw some light on the taxation in the withdrawal side? कि टैक्सेशन किस तरीके से काम करता है व्हेन अबाउट द विड्रॉल. जैसे आपने एक वो पेज अगर आप ओपन कर सकें जहां पे आपने विड्रॉल बताए थे, तो जो विड्रॉल वाला पेज था. सर विड्रॉल का जस्ट मैच्योरिटी रणदीप पे, जस्ट मैच्योरिटी या प्री मैच्योर, बिफोर द मैच्योरिटी. यस यस वो भी दिखा रहे हैं. तो मैं सर आपको बात बताऊं, जो भी हाँ, एनपीएस एक ये प्रोडक्ट है, तो जो भी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, बीट इन टर्म्स ऑफ एटीसी और एटीसी 1 भी, तो ये इस पे आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिल रहा है. करेक्ट. जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो टोटली टैक्स फ्री है. और जो आपको विड्रॉल में भी मिल रहा है फ्रॉम एनपीएस, दैट इज आल्सो टैक्स फ्री, बी इन इट टर्म्स एट ऑफ द टाइम ऑफ विड्रॉवल, रिटायरमेंट. सॉरी. तो जैसे इसके अंदर बैलेंस 60% इज पेड अप एज लमसम टू द सब्सक्राइबर, वो टैक्स फ्री रहेगा. टैक्स फ्री एनपी रहेगा. जो एडवर्टाइज हो जाएगा उससे जो पैसा आएगा वो टैक्सेबल रहेगा. हाँ, मतलब एनपी परचेस करने के लिए जो 40% कॉर्पस वैल्यू है वो तो टैक्स फ्री इन्वेस्ट हो रहा है. ऑब्वियसली जो आपको पेंशन दी जाएगी वो एक सोर्स ऑफ उसके इनकम ऊपर कहलाता टैक्स है. लगे. हाँ, जिस टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं उसको टैक्सेशन आ जाएगा. ओके. बट और जस्ट जैसे टू इसमें मेंशन क्वेश्चन. कि डिफरेंट प्लान्स होते हैं हमारे पास. सॉरी, जी जी बोले कंटिन्यू. आप. आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे. जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे कि जो एन्युटी प्लान्स लिए जाते हैं, हम्म. तो जो प्लान्स आज के टाइम पे इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है, जॉइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जिसमें कि मान लीजिए सब्सक्राइब उन्होंने पेंशन लिया, उनकी डेथ के बाद उनके स्पाउस को सेम अमाउंट का पेंशन मिल रहा है. और हम्म. उनके डेथ के बाद जो उनके नॉमिनी है या डिपेंडेंट्स है जिनको उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, उनको जो 40% का परचेज प्राइस था वो टैक्स फ्री उनको रिटर्न कर दिया जाता है. इन शॉर्ट ओके. अगर मैं बोलूँ कि जो भी रिटर्न हमने अर्न किए हैं एनपीएस में, वो टैक्स फ्री हो जाते हैं. 60% एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और 40% एट द टाइम ऑफ पेइंग द अमाउंट टू द नॉमिनी. ओके. तो ये एंड सारे अमाउंट जो भी हमें एनपीएस से मिल रहे हैं वो टैक्स फ्री रहते हैं. ओके. अच्छा, ये जो उसके बाद जो लाइन लिखी है, इफ द कॉर्पस इज लेस देन 5 lakhs देन फुल विड्रॉल इज परमिटेड. तो ये जो 5 lakhs या 5 लाख से नीचे का अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, वो ये भी भी टैक्स फ्री फुल्ली, रहता है. वो टैक्स फ्री रहेगा. जी वो भी टैक्स फ्री है तो अगर एट द बेसिकली टाइम एट ऑफ. द एंड ऑफ मैच्योरिटी, मेरा जो कॉर्पस वैल्यू है वो 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो वो फुल्ली टैक्स फ्री होगा और जी वो फुल्ली टैक्स विड्रॉल भी फ्री. होगा. हाँ हाँ. ओके. और जो ये बिफोर रिटायरमेंट है, इसके अंदर भी जैसे जो इफ द कॉर्पस इज लेस देन 2.5 lakhs देन फुल्ली विड्रॉल इज परमिटेड, दैट इज आल्सो टैक्स फ्री. यस. द प्री मैच्योर एग्जिट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपको 2.5 लाख के टाइम या 2.5 लाख से कम होता है वो अमाउंट भी आपको टैक्स फ्री होता है. प्लस अगर मान लीजिए आपका 2.5 लाख से ज्यादा हो रखा है, आपने 20% विड्रॉ कर लिया और 80% आप एन्युटी परचेज कर रहे हो, सो दैट 20% दैट यू विड्रॉ also tax free. ओके. Even the partial withdrawal that we are talking about, that we have talked about, that amount is also tax free. So any ओके. withdrawal that is being made on your NPS account is totally tax free, sir. ओके. एंड ऑन डेथ का जो जैसे है 100% विल बी पेड टू द नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑफ द सब्सक्राइबर. तो जी ये उसको, जो नॉमिनी या लीगल हेयर है, उसको मैंडेटरी एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या वो पैसा लेके यूज भी कर सर, सकता है? ये जो 100% कॉर्पस वैल्यू है वो नॉमिनी को उनके सेविंग्स अकाउंट में दिया जाएगा. अगर ओके. उनको चाहिए कि आपको एन्युटी परचेस करना है तो दैट्स अ सेकंड ऑप्शन, वो एन्युटी भी ले सकते हैं. अच्छा, फिर वो उनके हाथ में हो जाता हाँ, वो उनके एट द हैंड ऑफ नॉमिनी कि उनको क्या करना है, उनको टैक्स फ्री अपने सेविंग्स अकाउंट में लेना है या टैक्स फ्री को वापस से एन्युटी में कन्वर्ट करवाना है.
अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, और ये जैसे ये जो फंड्स एन्युटी में जाते हैं, तो एट अ लेटर डेट वो विड्रॉएबल होते हैं, या दैट विल बी ओनली एट द एंड ऑफ द, लाइक एट द डेथ ऑफ द, जिसके नाम पे वो एन्युटी ओपन है उसकी डेथ पे ही वो पैसा मिलेगा नॉमिनी को, या वो खुद भी उसको विड्रॉ कर सकता है एन्युटी टाइम, एन्युटी पीरियड? बेसिकली जो एन्युटीज होते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको मिलती है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है वो किस तरह के प्लान सेल आउट कर रहे हैं और सब्सक्राइबर ने कैसा प्लान ऑप्ट किया है। मैं आपको ओके। बताऊं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो एएसपी है हमारी पेरेंट कंपनी, उन्होंने अभी रिसेंटली 4 महीने पहले एक प्लान लॉन्च किया है जो आज के टाइम पे पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा प्लान है जहां पर अगर आप एन्युटी लेते हैं, आपने एन्युटी स्टार्ट कराई, और अगर आप चाहते हैं कि एट द एज ऑफ 80 ईयर्स जो परचेज प्राइस है वो आपको वापस मिल जाए तो वो मिल सकता है। ऑल्सो द एन्युटी विल बी कंटिन्यू टिल द टाइम द सब्सक्राइबर इज अलाइव। तो अगर मान लीजिए मैंने प्लान सेलेक्ट कर लिया तो मैं अगले 20 ईयर्स तक मुझे पेंशन दिया जा रहा है, एट द एज ऑफ 80 मुझे मेरा जो परचेज प्राइस था मुझे वापस कर दिया जाएगा। ऑल्सो माई एन्युटी विल बी कंटिन्यू टिल द टाइम आई एम अलाइव। तो ओके। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की इकलौता प्लान है मार्केट में जहाँ पे हम लोग परचेज प्राइस को एट द एज ऑफ 80 ईयर्स वापस कर दे रहे ओके। हैं। जी ओके। जी। सो इज देयर एनीवन एल्स हु वांट्स टू क्वेश्चन एनीथिंग? कुछ किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। Okay, I believe we do not have any further questions. Thank you, Sumit ji, for giving us this presentation and giving us an idea about NPS. Uh, Thanks a lot. Thank थैंक you यू so सो मच सर। एंड जस्ट टू कंफर्म यू ऑल्सो, अंशु विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ यू। सो अगर आप या आपकी टीम को किसी को भी कुछ डाउट रहे एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, you can just get in touch with Anshu or me at any point of time. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank Thank you, you. everyone. Have a Thank great you. evening. Thank you. Thank you.